السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ تو پچھلے جمعہ کو جو ہے عاشورہ تھا اور اس سے پہلے والے جمعہ کو ہم لوگ کلاس کیے تھے لیکن اپلوڈ نہیں ہو پایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کلاس میں ہم لوگ کیا کیا پڑھے تھے، تھوڑا سا 2-4 منٹ میں جلدی سے اسے جو ہے اس کا سمری ہم لوگ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے۔ تو اس کلاس میں ہم حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور غالباً جو ہے آدھی صورت ہم نے پڑھ لیا تھا، لفظی ترجمہ بھی کیا تھا، آدھی صورت کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، اور یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات کو ہم نے تفصیل کے ساتھ لگ بھگ 1 گھنٹہ میں کور کیا تھا۔ تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ خواب تھا یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ مجھے 11 ستارے، 1 چاند اور 1 سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جا کر کے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بتاتے ہیں، تو ان کے ابو جان کہتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا۔ پھر بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو کہاں ڈال دیتے ہیں؟ کنویں میں۔ اور پھر ایک قافلہ گزر رہا ہوتا ہے کنویں سے، تو قافلہ والا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو نکال لیتا ہے، اور نکالنے کے بعد لے جا کر مصر کے بازار میں بیچ دیتا ہے۔ اور خریدتا کون ہے یوسف علیہ السلام کو؟ مصر کا بادشاہ، اس کا وزیر یا اس کا کوئی خاص آدمی رہا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو خریدتا ہے، اور اس کی بیوی کا کیا نام تھا؟ زلیخا۔ پھر زلیخا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام پر الزام لگاتی ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کہاں چلے جاتے ہیں؟ جیل میں۔ پھر جو ہے جیل سے نکلتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ بادشاہ بلاتا ہے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے۔ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے جو ہے بادشاہ بلاتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام جاتے ہیں، خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، جیل سے آزادی ملتی ہے، اور خواب کی تعبیر جو ہے پکی ہوتی ہے، تو بادشاہ خوش ہو کر انہیں جو ہے فوڈ منسٹر بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد بھائی لوگ پھر جو ہے غلہ اناج لینے کے لیے کہاں پہنچتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تو بھائی لوگ تو نہیں پہچانتے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں۔ پھر جو ہے وہاں سے یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنا قمیص اتار کر دیتے ہیں کہ یہ قمیص لے جاؤ اور میرے جو ہے والد کے چہرے پر رکھ دینا، ان کی بینائی چلی آئے گی۔ پھر جو ہے پورا خاندان جو ہے نکل کر کے کنعان سے کہاں چلاتا ہے؟ مصر، اور یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے لگتا ہے۔ اور وہاں پہ تمام بھائی، 10 بھائی تھے، 11 بھائی، یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12 لوگ تھے ٹوٹل، تو 11 بھائی مل کر کے سجدہ کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو۔ اس دور میں سجدہ انسان کے لیے سجدہ جائز تھا، وہ بھی تعظیمی سجدہ، ٹھیک ہے، تعظیم مطلب رسپیکٹ کی نیت سے، یہ نہیں کہ یہ میرا خدا ہے، ایسی نیت سے نہیں، رسپیکٹ کی نیت سے اس وقت سجدہ۔ آج بھی اگر کوئی رسپیکٹ کی نیت سے کسی کا سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام کرے گا، اور عبادت کی نیت سے اگر سجدہ کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کسی پیر، کسی ولی، کسی مزار پر سجدہ نہیں کر سکتے، کیوں کہ سجدہ تعظیمی اکثر لوگوں کے نزدیک حرام ہے، ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کے نزدیک سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ بعض لوگوں نے سجدہ تعظیمی کو جائز لکھا ہے، لیکن اکثریت یہی کہتی ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے ناجائز ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کریں گے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ شریعت محمدیہ میں اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ سجدہ کسی انسان کے لیے، کسی فرشتہ کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں، صرف خدا کے لیے سجدہ جائز ہے۔ بہرحال تو وہاں پورا پریوار، یوسف علیہ السلام کا پورا پریوار وہاں شفٹ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بھائی نہیں تھے بلکہ پورا خاندان تھا۔ میرے ذہن سے بات نکل رہی کتنے لوگ تھے، غالباً 100 لوگ کے قریب تھے یا 70 لوگ تھے، بہرحال جتنا بھی تھے، پورا خاندان تھا۔ سب کہاں شفٹ ہو جاتا ہے؟ مصر میں، ٹھیک ہے نا، یہ مصر ہے، ٹھیک ہے، یہ فلسطین ہے، تو یہاں سے نکل کر مصر میں وہ لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان مصر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے سننے کو ملے گا کیا ہوتا ہے، تو اب ان کا خاندان جو ہے ریسپیکٹ لوگ دیتے ہیں بنی اسرائیل کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12
कि 12 बेटे कहां शिफ्ट हो गए, मिस्र में। मिस्र में शिफ्ट हो गए और मिस्र में इनसे खानदान आगे चला, नस्ल चली। तो 12 लोग थे ही, और भी लोग थे, उनसे पूरा जो है मिस्र भर गया उनकी आबादी से। आबादी जो है बहुत ज्यादा फली फूली, और यूं समझ ले मिस्र में 300 साल तक ये लोग फले फूले, खूब इज्जत मिली। उसके बाद जो बादशाह आता है, तो उस बादशाह को, अब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आएगा, 300 साल ये लोग रह चुके हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, और इन लोगों का मजार कहां बना है, फिलिस्तीन में। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हम जब इंतकाल कर जाएंगे तो हमारा मजार, जो भी हमारी कब्र कहां होगी, फिलिस्तीन में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम, और बाद लोग कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में इख्तिलाफ है, बहरहाल तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र जो है यही थी, और यहां से जो है उस ताबूत को निकाल करके यहां ले गया गया। तो याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों अंबिया का मजार फिलिस्तीन में, ठीक है। दोनों अंबिया का मजार कहां है, फिलिस्तीन में। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है, याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए तो उसके बाद जो है लोग जो है इज्जत की निगाह से बनी इसराइल को नहीं देखते थे। उसके बाद क्या हो गया कि अब बनी इसराइल का जवाल शुरू होगा, बर्बादी शुरू होगी। 300 साल तक जो ये लोग ठीक ठाक रहे, उसके बाद क्या हुआ, अब बर्बादी शुरू होगी। किस तरीके से, अब जालिम बादशाह आएगा, ठीक है। अब जो यहां बादशाह आएगा उसे अब कहेंगे फिरौन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जो मिस्र का बादशाह था, उसे कुरान ने कहीं भी फिरौन नहीं कहा है। पूरे सूरह यूसुफ में फिरौन नहीं है, क्योंकि जो उस वक्त बादशाह था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो जमाने में जो बादशाह था, वो फिरौन नहीं था, ठीक है। फिरौन किसी इंसान का नाम नहीं है, हम बता चुके हैं, ठीक है। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसे फिरौन कहते थे, ठीक है। इराक का जो भी बादशाह होता था उसे जो है नमरूद कहा जाता था। ईरान का जो बादशाह होता था उसे जो है क्या कहते हैं, किसरा कहा जाता था। और रोम का जो बादशाह होता था उसे कैसर कहा जाता था। तो ये अलग अलग हिसाब था, बहरहाल। तो वो जो है देखा कि बनी इसराइल की तादाद बढ़ गई है, ये लोग जो है संख्या में ज्यादा होने लगे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये लोग हमारी तख्त को पलट दें और ये लोग हुकूमत करने लगे। तो इसीलिए उसने कहा, उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में आज के बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनको कत्ल कर दिया जाए। जो भी बच्चा पैदा होंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा, और जो भी बच्ची पैदा होगी उन्हें रखा जाएगा। तो फिर लोगों ने कहा कि ऐसा अगर होगा तो फिर तो आगे नस्ल नहीं चलेगी, सिर्फ औरतों से तो नस्ल नहीं चलती है। तो उसने कहा कि ऐसा करो कि जो है 1 साल छोड़ देंगे, और 1 साल जितना बच्चा पैदा होगा सबको कत्ल कर दिया जाएगा। ये कानून नाफिज किया था, ये पारा नंबर 1 में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उसने कानून नाफिज क्यों किया था, नुजूमियों से इसने पूछा था। नुजूमी कहते हैं अभी के डेट में, क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर, यही बोलते हैं उसको, यानी सितारा देखकर बताता है तुम्हारी किस्मत में क्या है, ठीक है। हाँ, तो उसे नुजूमी कहा जाता है। तो नुजूमियों ने कहा था कि यहीं से एक बच्चा पैदा होगा, वही तुम्हारी जो है तख्त को पलट देगा। तो ये डर जो है बादशाह को सताने लगा था, इसीलिए उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जितने भी बच्चा पैदा होंगे सबको कत्ल कर दिया जाए, ठीक है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की एंट्री होती है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी माँ के दिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्का किया, यानी उनके माँ के दिल में एक बात डाली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि इसे जो है दरिया में बहा दो। उनकी माँ ने जो है किसी चीज में बंद करके रख करके टोकरी वगैरह में दरिया के जानिब रवाना कर दिया, और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची लगा दी कि तुम देखते जाना, दरिया के साथ साथ चलना, तुम देखते जाना के जो है इसे उठाता कौन है, ठीक है। तो ये जो है बहता हुआ डोल या जो कुछ भी रहा होगा, वो बहता हुआ बादशाह के महल के करीब पहुंचा। तो है बादशाह की बीवी जो है वो उठा ली, ठीक है। और उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये को करना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहे करा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत, फिरौन के घर में मूसा की परवरिश हो रही है, देखिए ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही कर सकता है। तो आसिया नाम था फिरौन की बीवी का, क्या नाम था, आसिया। तो आसिया ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को ले लिया और कहा, ये पूरी सूरत है, सूरह कसस अभी हम खोल ले रहे हैं, एक मिनट, ये क्या हो गया, सूरह कसस,
सूरह कसस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बयान किया है। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जो है कुरान मुकद्दस में सबसे ज्यादा आया, और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है 550 आयतों में उनका जिक्र मिलता है। 550 आयतों में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। कुरान में कुल कितनी आयतें हैं? कुरान में मशहूर है 6666, लेकिन 6666 आयत नहीं है, 6232 या ऐसे कुछ है। देख लीजिएगा, आप लोग नेट पर मारिएगा आ जाएगा, लेकिन मशहूर है 6666। उसमें से 500 आयत जो है सिर्फ और सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के नाम पर है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का उसमें तज़किरा है 550 आयत में। तो समझिए कि 1/2 हिस्सा जो है कुरान मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िल हुआ है। इससे मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत का अंदाजा आदमी लगा सकता है। ठीक है, तो ये सूरह कसस है। ये पूरी कहानी ही बयान हो रही है। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी चल रही है, ये पूरी कहानी मूसा अलैहिस्सलाम की चल रही है। ठीक है, हम पढ़ेंगे एक एक आयत, तो बहुत टाइम लगेगा, जहां जरूरत पड़ेगी हम आयत देख लेंगे। तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हो रही है कहाँ? फिरौन के घर में। फिरौन की बीवी ने मूसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया और कहा हम इसको रख लेते हैं, इसकी परवरिश करते हैं। ठीक है, वैसे भी हमारी औलाद नहीं है, हम इसकी परवरिश करते हैं, तो रख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जो है, हाँ, जब जो है बारी आई कि इसकी परवरिश कैसे की जाएगी, मूसा अलैहिस्सलाम को दूध कौन पिलाएगा, तो अल्लाह कुरान में मुकद्दस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूध को हराम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी का दूध नहीं पी रहे थे। ठीक है, तो फिर किसी ने खबर दिया करके कि क्या कहते हैं, एक औरत है वो पिला सकती है। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ही थी। ठीक है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का सब जो है उसी तरह मकसूद ही था। तो वो पहुंची मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, और वो जब पिलाना शुरू की, मूसा अलैहिस्सलाम पीना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम पीना शुरू कर दिए तो फिरौन खुश हो गया और कहा कि अब तुम्हारी पूरी परिवार की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। ठीक है, इसको दूध पिलाओ, अच्छे से परवरिश करो। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश होने लगी। उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि हम बनी इसराइल से हैं। ठीक है, हम इन लोगों के खानदान से नहीं है, हम बनी इसराइल के खानदान से। मूसा अलैहिस्सलाम को पता था, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल के फेवर में ज्यादा रहते थे हमेशा। ठीक है, और ये बादशाह जो है जालिम बादशाह, इसके फेवर में नहीं रहते थे। लेकिन ये भी सोचते थे कहीं जो है आइडेंटिटी हमारी रिवील्ड हो गई तो फिर मसला गड़बड़ा जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है, दो लोग आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, यक़ततिलान, फाइटिंग ईच अदर, यानी दो लोग जो है आपस में लड़ रहे थे। एक बनी इसराइल का आदमी था और एक वहीं का आदमी था, मिस्र का ही। ठीक है, तो दोनों आपस में लड़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। जो बनी इसराइल का आदमी था वो जो है मदद तलब की मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम जलाली थे, गए। जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? फवक़ज़हु मूसा फ़क़दा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है मुक्का मारा तो जो है उसकी वहीं पे मौत हो गई, उस इंसान की वहीं पे मौत हो गई। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का ये इरादा नहीं था कि उसको हम मार दें, ये जो है हो गया, अचानक हो गया, ये इरादतन नहीं हुआ। ठीक है, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान, मूसा अलैहिस्सलाम बेतहाशा बोल पड़े कि ये तो शैतान वाला अमल है, हमने क्या कर दिया। ठीक है, तो वहां से मूसा अलैहिस्सलाम जो है, अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? अब इन्होंने ये अमल कर दिया है। फिर किसी और दिन जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, कल होकर के मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वही बंदा जो बनी इसराइल का बंदा था, वही किसी दूसरे से लड़ रहा है। ठीक है, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे जाते हैं। अब देखिए वो इंसान मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि कल आपने जिसको मार दिया था, क्या उसी तरह मुझे भी मारना चाहते हैं? ठीक है, उसने वो बात पब्लिक के सामने रख दिया। पब्लिक सबको पता चल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कल एक जो है मर्डर कर दिया था, एक इंसान को मार दिया था। अब ये बात पहुंच गई लोगों तक, सरदारों तक, बड़े बड़े जो सरदार थे उन तक ये बात पहुंच गई। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो थे जो है बादशाह के आदमी, बादशाह के घर में परवरिश हुई थी, लेकिन बादशाह भी जानता था ये हमारा बेटा तो है नहीं, हमारे खानदान में से है नहीं। और सरदार लोगों की आंखों में ये मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे थे हमेशा से। वो चाहते थे कि कोई बहाना लगा करके हम मूसा अलैहिस्सलाम को हटा दे रास्ते थे, और ये बहाना मिल गया। पूरा जितने सरदार थे सबने जो है इत्तेफाक कर लिया इस बात पे कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को यहाँ से हटा देना है, जो है कांटा साफ कर देना है, मूसा अलैहिस्सलाम को खत्म कर देना है। और जो है वजह मिल ही गई थी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक इंसान को मार दिया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकलेंगे। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे अब माफी तलब कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल रब्बी बिमा अनअमत अलैया फलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन। हाँ, यहाँ फग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लह इन्नहु
हुवल गफूरुर रहीम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नी ज़लमतु नफ्सी, बेशक हमने अपने ऊपर जुल्म किया है, फग़फ़िर ली, तू मुझे माफ कर दे, फ़ग़फ़र ला इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, माफी मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ किया। ठीक है, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं। जैसे ही सुबह हुई फ़अस्बह फिल मदीनती ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु फ़इज़ा, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं। ठीक है, निकलने के बाद वहां से निकल करके कहाँ पहुंचते हैं, यहां से निकल करके मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन पहुंचते हैं। ये शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका है, ये है मदियन। यहां से मूसा अलैहिस्सलाम निकल के यहाँ पहुंचते हैं मदियन में। अब जब वहां पहुंचते हैं तो थक जाते हैं। 7 दिन जो है रिवायत में आता है कि 7 दिन आप और 7 रात चलते रहे मुसलसल, और चलने के बाद ये पूरा क्रॉस करके यहाँ पहुंचते हैं मदियन में। मदियन इलाका था शुएब अलैहिस्सलाम का, ये शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका है मदियन। वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो है बहुत सारे लोग कुएं से पानी भर रहे हैं, और 2 लड़की जो है वो साइड में खड़ी हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम जाके पूछते हैं तुम लोग साइड में क्यों खड़ी हो, क्या परेशान लग रही हो? तो वो लोग बताती है कि वो तमाम मर्द हजरात भर लेंगे पानी, बचेगा तो हम लोग भरेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐसा क्यों? तो उन दोनों लड़कियों ने कहा कि हमारे वालिद जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, वो आ नहीं सकते हैं, और ये जो लोग हैं ये भरने नहीं देंगे हमें, हम झगड़ा करने जा नहीं सकते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है गए वहां पे और सबको साइड करके कहा कि जो है पहले औरत को भरने दो, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है पानी निकाल करके दे दिया, और फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम छांव में आकर के बैठ गए। और उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह कुछ जो है जो भी मिल जाए, मैं जो है मुझे कुछ नेमत मैं तलब करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने तलब की। ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया। कैसे अता किया? वो दोनों जो है लड़कियां जाती हैं अपने वालिद से कहती हैं, और वालिद कौन थे? शुएब अलैहिस्सलाम। ठीक है, शुएब अलैहिस्सलाम से जाकर के माजरा सुनाती है। शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो शख्स जिसने तुम्हारी मदद की है उसे बुला करके लाओ। ठीक है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने आती है वो दोनों बच्चियां, और बुला करके मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे जाते हैं, पूरा माजरा सुनाते हैं शुएब अलैहिस्सलाम को। फिर शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है जो है आप यहीं पे रहें, और वाकया ये होता है कि जो है मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो जाती है शुएब अलैहिस्सलाम की लड़की से। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो जाती है, और मूसा अलैहिस्सलाम की शादी जो है इस शर्त पे होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम वहां पे 10 साल रहेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल या 10 साल जो है मदियन में ही रहते हैं शुएब अलैहिस्सलाम के पास, और यही उनकी शादी हो जाती है। अब यहाँ से फिर जो है वापस चले हैं मिस्र की तरफ। ठीक है, वो सूरत ताहा में बयान हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं है वो। ठीक है, देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जगह बयान कर दिया है तफसील के साथ पूरा सूरह यूसुफ में, लेकिन बाकी जितने अंबिया हैं सबका तज़किरा जो है थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा उस सूरत में, इस तरह बयान किया गया है। तो इसलिए अब सूरत ताहा में भी है, ठीक है, सूरह कसस में भी है, और भी सूरत में है जो है मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा। तो वहां पे जो है मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं, कहां से? मदियन से। मदियन से निकलते हैं फिर कहां के लिए? मिस्र के लिए वापस, कि मैं चलूं अब फिर वहां अपने खानदान वाले के पास। तो रास्ते में क्या होता है? रास्ते में उन्हें आग नजर आती है, एक आग। ठीक है, इन्नी आनस्तु नारा कुरान में लफ्ज है। हम खोल लेते हैं सूरत, कहां गया बैग कैसे? हाँ, दो चार सूरत जो है वो यूं समझ ले इब्तिदा, 2-4 आयत जो है वो तमहीद है। ठीक है, यहां से क्या लिखा है? ही सॉ अ फायर, उन्होंने एक आग को देखा। ठीक है, एक आग जो है देखा कि आग जो है जल रही है। फकाल अली अहलिही, तो उन्होंने जो है अपने खानदान से कहा। अब यहाँ अहली ही है, अब हो सकता है कि सिर्फ बीवी उनकी साथ हो, या हो सकता है कि उनके बच्चे भी साथ हो। ये कुरान में ये नहीं है कि कौन कौन लोग साथ थे। ठीक है, लेकिन पता चलता है कि बीवी भी साथ में थी और बच्चे भी साथ में थे, ऐसा पता चलता है, और एक गुलाम भी साथ में था। बहरहाल जो भी थे, तो उनसे कहा कि मुझे एक आग नजर आ रही है, मैं वहां पे जाता हूँ। हाँ, कुसु स्टे है, अब तुम लोग यहीं पे रुको, मैं आ रहा हूं। ठीक है, इन्नी आनस्तु नारा, लाली आती कुम मिनहा बिक़बसिन औ अजिद वालन नारी हुदा, मैं वहां से कुछ आग लेकर के आऊंगा। ठीक है, जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं वहां पे, ठीक है, तो नूदिया या मूसा, ही वाज कॉल्ड, मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा जाता है, ओ मूसा। अब वहां पे जब जहां पे आग जल रही थी वहां पे जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम को वहां पे पुकारा जाता है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम आवाज सुनते हैं तो अब आवाज क्या आती है? आवाज आती है इन्नी अना रब्बुक, मैं तुम्हारा रब हूं।
आई एम योर लॉर्ड, मैं तुम्हारा रब हूं। फखला नालैक, सो रिमूव योर शूज, अपने जूते को उतार दो। मूसा अलैहिस्सलाम करें इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, ये जो है ये मुक़द्दसी, ये कौन सी वादी है? मुक़द्दसी तुवा। मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने जूते को उतार देते हैं। उतारने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये व अना अख्तरतुका फस्तमि' लिमा यूहा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या किया है? चुन लिया है। फस्तमि', तुम सुनो, लिमा यूहा, जो वही की जा रही है। इन्नी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा है कि आपको नबी बनाया गया है, ठीक है। नबी तो हर नबी को पहले ही चुन लिया जाता है, ठीक है। नबी बचपन से ही नबी होता है, लेकिन ऐलान नबूवत या उसका ज़ुहूर बाद में होता है, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का यूं समझ लीजिए कि ज़ुहूर हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का अब ज़ुहूर हो रहा है। अल्लाह खुद कलाम कर रहा है मूसा अलैहिस्सलाम से, ठीक है। एक दरख्त के पास से वहां से आवाज आती है कि मैं तुम्हारा रब हूं, तुम जूते उतार दो, आगे आओ, ठीक है। उसके बाद अल्लाह कहता है इन्नी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। फअबुदनी, मेरी इबादत करो, ठीक है। वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज को क्या करो? कायम करो। वाक़िमिस सलात लिज़िक्री, अक़ीमिस सला, नमाज कायम करो, लिज़िक्री, मेरी याद के लिए। नमाज का मकसद यहां बता दिया गया है कि नमाज किस लिए कायम करना है? मेरे जिक्र के लिए। जिक्र किसे कहते हैं? याद को, ठीक है। जिक्र किसे, यहां लिखा है रिमेम्बरेंस, फॉर माई रिमेम्बरेंस, मेरी याद के लिए। यानी ऐसा ना हो कि बंदा जो है खुदा को ही भूल जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 वक्त की नमाज को रखा है कि बंदा हर वक्त खुदा को याद करे। सुबह में सबसे पहले उठे तो नमाज पढ़ ले, खुदा को याद कर ले, फिर दिन में कमाए बढ़िया से, फिर जो है दोपहर का वक्त आए तो फिर नमाज पढ़ ले, खुदा की याद कर ले, खुदा को याद कर ले। फिर जो है असर का वक्त, ज्यादा भीड़ भाड़ का वक्त होता है, बाजार है, ये है, वो है, तो उसमें जो है फिर ऐसा ना हो कि भूल जाए खुदा को, फिर असर में याद करो। फिर जो है जब दिन खत्म हो जाए, रात की शुरुआत हो, फिर मगरिब में खुदा को याद करो, और फिर जब सोने जाओ तो सोने से पहले इशा में फिर खुदा को याद करो। 5 वक्त इस तरीके से खुदा को याद करो। और यही जो है एक इंसान की, एक बंदे की कामयाबी है कि वो खुदा को याद रखे। तो नमाज का मकसद खुदा की याद है, ताकि खुदा जो है बंदा जो है खुदा को याद रखे, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वहां पे यूं समझिए कि नबूवत का इजहार हो रहा है मूसा अलैहिस्सलाम का। और मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकलते हैं, जाहिर सी बात है वहां से कहां निकलेंगे? यहां आएंगे मिस्र में, ठीक है। वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम को यदे बैजा दिया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या था? वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? एंड व्हाट इन योर राइट हैंड, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं काला हिया असाया, ये मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा, मैं इससे जो है क्या करता हूँ? बकरियां चराता हूँ, बकरियों को हाँकता हूँ, ठीक है, पत्ते झाड़ता हूँ, ये सारा कुछ करता हूँ इससे, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ही सेड, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा थ्रो इट डाउन, इसे नीचे डालो, ऐ मूसा इसे नीचे रखो, ये तुम्हारे हाथ में जो लाठी है इसे नीचे रखो। फअल्क़ाहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने नीचे डाल दिया लाठी को। फइज़ा हिय, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने नीचे डाला, हय्यतुन तसा, तो वो सांप बनकर, लाठी जो है सांप बनकर घूमने लगा, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा खुज़हा वला तखफ, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि इसे पकड़ लो, डरो मत। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि डरो मत, इसे पकड़ लो। अब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो है एक समझिए मोजज़ा अता कर दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को, ठीक है। अब वही मोजज़ा लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम कहां जाएंगे? फिरौन के पास। ये पूरी वही आयत है, ठीक है, वही आयत चल रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कि इज़हब इला फिरौन, कि फिरौन के पास तुम जाओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हो रहा है कि यहां से निकलो, मदियन से अब कहां जाओ? मिस्र की तरफ। और वहां से चल दिए थे मूसा अलैहिस्सलाम, रास्ते में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि जाओ, फिरौन के पास तुमको जाना है। मूसा अलैहिस्सलाम तो जा रहे थे अपने खानदान वाले से मिलने के लिए, लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है तुम फिरौन के पास जाओ, ठीक है। तो वो क्या हो गया है, जो है वो क्या कहते हैं उसको, खुदा का नाफरमान हो गया है। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, वो खुदा का नाफरमान हो गया। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, अब मूसा अलैहिस्सलाम ये सब जो है दुआ करते हैं कि ऐ मेरे रब, इश्रह ली सदरी, यानी मेरे सीने को खोल दे, ये सब कुछ दुआ करते हैं। ये दुआ पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये पूरा दुआ है। हारून आखी, अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम था हारून। मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का क्या नाम था? हारून। अब वो भी, हारून अलैहिस्सलाम भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो जाते हैं, और वो दोनों जो है निकल पड़ते हैं कहां के लिए? जो है मिस्र के लिए।
फिरौन के दरबार के लिए। अब वहां पहुंचते हैं, ठीक है, तो वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, फिरौन के पास पहुंचते हैं तो लोग पूछते हैं, तो ये सब कुछ बताते हैं कि मैं जो है, मुझे जो है मैं नबी हूं और तुम्हारे पास नबी बनकर आया हूं, मैं ऐलान करता हूं कि मैं नबी हूं। तो अब वो लोग इतना आसानी तो थोड़े मानने वाले थे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम का वहां मुकाबला होगा, किससे? जादूगरों से, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम से लोग कहते हैं कि नबी है तो कुछ बताइए, कुछ दिखाइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम बताते हैं, यद बैजा दिखाते हैं, और क्या कहते हैं, सफेद हाथ दिखाते हैं, वो उन्हें अता किया गया था, ठीक है। और वो जो लाठी जो है वो डालते हैं, सांप बन जाता है, ये सब कुछ दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो जादू है, ठीक है, जादू है, तो अब तुम्हारा मुकाबला जादूगरों से होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला जो है जादूगरों से होता है। तो जादूगरों से जब मुकाबला होता है मूसा अलैहिस्सलाम का, तो बड़े बड़े जादूगर जो है फिरौन बुलाता है दूर दराज से, ठीक है। अब जब जादूगर आते हैं, मुकाबला होता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम, वो जादूगर आते ही मूसा अलैहिस्सलाम, जाहिर सी बात है नबी की जो है एक हैबत होती है, और मूसा अलैहिस्सलाम को सब कुछ अता कर दिया गया था, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हम लोग नीचे, अच्छा यहाँ पे, हाँ यही तो है, कहाँ गए, लय्यिनल्लाहु यतज़क्करू, यानी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि फिरौन के पास जब जाना तो किस तरह बात करना, नरमी से बात करना, हिकमत के साथ बात करना। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दावत व तबलीग का जो है तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत सिखा रहा है। फिरौन जैसा जालिम बादशाह, उसके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि उसके सामने जाना तो नरमी से बात करना। क्यों? यहाँ ये कुरान जो है पूरे इंसान के लिए है ये किताब, और इंसानियत को यहाँ, इंसानों को यहाँ पैगाम दिया जा रहा है कि जब भी तुम दावत व तबलीग करो, किसी को दीन की बात बताओ, तो चाहे जितना जालिम कोई हो, जितना फासिक हो, जो भी गुनाहगार हो, उसको प्रेम से उससे बात करनी, कभी भी झिड़कना नहीं है। जब भी दीन की दावत दो, किसी को दीन के बारे में बताओ, तो प्यार से, नरमी के साथ, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, कि जब भी जो है रब के रास्ते की तरफ दावत दो, तो किसके साथ दो? हिकमत के साथ दो। ये मकसद था कहने का, ठीक है। तो जादूगरों से अब वहां मुकाबला होगा। अब जादूगरों से जब मुकाबला होता है तो जादूगर आते हैं, जादूगर खुद पूछते हैं कि आप शुरू कीजिएगा कि हम शुरू करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम लोग शुरू करो। तो वो लोग जो है, वो लोग कुछ निकालते हैं और नीचे डालते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे सांप जो है नजर आने लगते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा रखते हैं तो बड़ा अजदहा बन जाता है वो आसा, और वो तमाम सांपों को निकल जाता है। तो वो लोग समझ जाते हैं ये जादू नहीं है, ठीक है। वो लोग, एक जादूगर जानता है कि जादूगर की लिमिटेशन क्या होती है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये जादू नहीं है, ये कुछ और चीज है। तो वो लोग बेतहाशा मूसा अलैहिस्सलाम के पास गिर पड़ते हैं सजदे में, और मूसा अलैहिस्सलाम के सामने तौबा करते हैं कि मैं तौबा करता हूं तमाम चीजों से, और मैं ईमान लाता हूं मूसा और उसके रब पर। वो तमाम जादूगर तौबा करके मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं और कहते हैं कि मैं ईमान लाता हूं मूसा और उसके रब पर, ठीक है। और इस तरीके से जो है जादूगर मुसलमान हो जाते हैं। अब जब जादूगर मुसलमान हो गए तो अब फिरौन जो है खलबला गया कि अब क्या किया जाए, ठीक है। तो अब फिरौन जो है अपने लश्कर के साथ आएगा मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकलेंगे, फिर मिस्र से आगे फिलिस्तीन के लिए।